Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is going to be second lecture of the topic Pakistan legal system. Now let's see what are the learning objectives of second lecture. First we are going to know about statute law, then the difference between an act and an ordinance, then types of statute law, Islamic law, PPC and CRPC, and in the end laws related to medical examinations. The other type statute law. Remember law के दो major types थे, common and statute law. Common law हमने study किया है. Now the next one is statute law. Statute law is a body of law that may be civil or criminal. पहली चीज़. जबकि common law में there was nothing like civil and criminal. Second thing is that it is a written and codified law of the country. जबकि common law में हमने क्या पढ़ा था कि that is unwritten, uncodified. अब कोडिफिकेशन का क्या मीनिंग है? कोडिफिकेशन इज़ एक्चुअली द कलेक्शन एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द लॉज ऑफ अ स्टेट और कंट्री. जब उनको हम एक रिटन फॉर्म में एक तरीके से सलीके से एक जगह लिख लेते हैं, उसकी कोड्स लगा लेते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड जैसे ये डिराइव किया गया है कोडिफिकेशन, तो अब ये बन जाता है कि इसका सेक्शन लग गया, ये कोडिफाई हो गया, रिटन फॉर्म में मौजूद है. So statute law is the written and codified law of the country. Now अब ये enact कैसे होता है? It is enacted by the legislative body of a representative government or ordered by a ruler. यानी either legislative body means कानून साज इदारा, और पाकिस्तान में ये कानून साज इदारा क्या है? पार्लियामेंट. तो या तो ये है कि पार्लियामेंट जो है इसको इनेक्ट करेगी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, या फिर रूलर जो है वो इसको ऑर्डर कर देगा. अब इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एन ऑर्डिनेंस. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनेंस एंड एन एक्ट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड एन ऑर्डिनेंस? First we will talk about ordinance. If decreed by ruler of the state, it is called an ordinance. Decreed means ordered. Suppose the president orders something, but still it is an order because it is not passed by the legislative assembly of the representative government with a majority. अभी उसने पास नहीं हुआ है, पेश ही नहीं हुआ है पार्लियामेंट में. That's why it is an ordinance, because it is passed in a hurry by the president or the ruler. So the examples of very recent ordinances that were passed in March are the Income Tax Ordinance 2021 and the Elections Ordinance 2021. You can search them at Google. So this was an ordinance. Now what is an act? When approved by the legislative assembly means Kanun Saz Idara, that is in Pakistan, that is Parliament or the National Assembly, then it is called an act. अब ordinance तो पास कर दिया, उसने जारी कर दिया प्रेसिडेंट ने, लेकिन अभी वो एक्ट नहीं बना. एक्ट कब बनेगा? जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे वोटिंग होगी और फिर 2/3 मेजॉरिटी या 66% मेजॉरिटी से वो पास होगा. देन इट विल बिकम एन एक्ट. Example of some acts are the Anti-Money Laundering Act 2020 and the Pakistan Medical Commission Act. We all are familiar with 2020. This is the Parliament House. क्या है ये? Legislative body of the representative government, जहाँ पे हमारे सारे statute laws बनते हैं. Amendments भी उनमें हो सकती हैं. यहाँ पे हो सकता है कि existing law है लेकिन it needs an amendment, वो भी यहाँ पे होती है, majority से पास होती है. अब we are done with the common law and statute law. अब आइए let's talk about the types of statute law. There are two types, civil law and criminal law. Now civil law deals with the rights of citizens in a particular state or nation and provides remedies for personal grievances of individuals or groups of individuals. इसका मतलब ये है कि it does not concern with the community as a whole. पूरी community से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल से, या एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, जिनके ग्रीवेंसेस को ये देखेगी, उनकी रेमेडीज़ देगी, सिविल लॉ देगी. अच्छा, अब इसका जो डैमेज है, पनिशमेंट में भी फ़र्क आ जाता है सिविल और क्रिमिनल लॉ की. सिविल लॉ हैज़ गॉट इट्स ओन कोर्ट्स भी इसकी अलग हैं, सिविल कोर्ट्स कहलाती हैं. एंड द डैमेज इज़ कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसमें डेथ पेनल्टी नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, फ़ाइन भी नहीं है, फ़ाइन है सॉरी, इन टर्म्स ऑफ मनी, फ़ाइन की सूरत में इसका डैमेज कंपनसेट होता है. Now let's see what are the examples of civil cases.
or civil disputes. Remember, these are dealt in civil courts and by civil judges also. So first example is defamation, and it is quite relatable with you. That's why I have put a picture with two celebrities in relation to the Ali Zafar defamation case. So this case was dealt in a civil court by a civil judge. Other examples are family law, nuisance. Now what is nuisance case? क्या होता है? That is any nuisance means any human activity that is harmful, indecent or offensive for some other person. Negligence के cases, all cases of wills and inheritance are dealt in these civil courts, and these are civil disputes. Breach of contract के cases, trespass means किसी की property में नाजायज़ दखल अंदाजी करना. So these are all different examples of civil cases. Now criminal law. Again थोड़ा सा पीछे करते हैं. लॉ के दो टाइप्स कौन से? कॉमन लॉ, स्टैच्यूट लॉ. स्टैच्यूट लॉ की अगेन दो टाइप्स हो गई, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ. अब डिफ्रेंशिएट करते जाना है आपने सिविल और क्रिमिनल को. सिविल लॉ क्या था? सिविल लॉ वाज कंसर्न विद द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है, द थर्ड पॉइंट, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड मेंटेन्स द प्रॉपर ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी. यानी इट इज़ कंसर्न विद द कम्युनिटी एज अ होल, not to a single person or a group of individuals, but to the community as a whole. Law and order situation को maintain रखने के लिए ज़रूरी है. It is the body of law which exists for better governance within the state. It includes all offences against the law. Offence कहते हैं जुर्म को. Offence is actually anything that is made punishable by Pakistan Penal Code. वो offence बन जाएगी. अब सारे offences criminal law में आ जाते हैं. अब दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि हाउ इट्स कंट्रावेंशन इज़ पनिश्ड. सिविल लॉ की कंट्रावेंशन जो है पनिश की होती थी कैसे? मनी से. लेकिन यहाँ पे जो कंट्रावेंशन है दैट इज़ पनिश्ड विद फाइन, इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस एज द केस में भी. सो दैट इज़ क्रिमिनल लॉ. इसकी भी अलग कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स. क्रिमिनल जजेस भी अलग होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस केसेस जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं. मर्डर, होमिसाइड, फिजिकल इंजरी, कारनैपिंग, रेप, थेफ्ट, रॉबरी, कैटल रसलिंग. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ केसेस. नाउ द थर्ड लॉ जो कि हमने अदर लॉज में पढ़ा था, दैट वाज इस्लामिक लॉ. ठीक है. अच्छा, अब इस्लामिक लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री ये देखनी पड़ेगी कि इंडो पाक जब एक स्टेट था, पाकिस्तान एंड इंडिया, बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो इंग्लिश लॉ वहाँ पे फॉलो होता था. अंग्रेज़ों का कानून चलता था और उसका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. जब पाकिस्तान बना तो हमने वही अडॉप्ट कर लिया, वही वाला लॉ, लेकिन उसका नेम चेंज करके रख दिया पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड. अब प्रॉब्लम ये आया कि पीपीसी के बहुत से जो लॉज थे दे वर नॉट इन कन्फर्मिटी विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड होली कुरान एंड सुन्ना. और पाकिस्तान का तो नाम ही था इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये तो बना ही इस्लाम के नाम पे था. सो इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दैट ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट इन कन्फर्मिटी विद द होली कुरान एंड सुन्ना. अब इस पर बेस करते हुए सिंस द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ, अब ये देखा जाता है कि वेन एवर अ क्वेश्चन शुड अराइज बिफोर अ कोर्ट दैट द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ not according to the teachings of Islam or Sharia, then the court shall refer the matter to Federal Shariat Court for decision on the issue. ठीक है. तो उस केस में फिर इस्लामिक लॉ बनाया जाता है और फिर उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमारा रिलीजन में जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह ताला के पास है, और सुप्रीमेसी है वो किसको हासिल है? शरिया को हासिल है, किसी इंसान को हासिल नहीं है. उसके लॉज पे हमने नहीं चलना, हमने अपनी शरिया के लॉज पे चलना है. So Islamic law is based on teachings of Holy Quran and Sunnah. It can also be both civil and criminal. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हुदूद ऑर्डिनेंस जो ज़िया-उल-हक के ज़माने में बनाया गया था, इस्लामिक लॉ है. मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इस्लामिक लॉ है. So these are two examples of Islamic law. So this was the last slide of first lecture. Okay, now here is your assignment number 2 for this lecture.
There are 4 questions. Question number 1 is under which section of CRPC an inquiry of a death in police custody is done? You have to write the name of that section. Question number 2, just the name, no story. Question number 2, how much majority is needed for passing of an act in Parliament? Question number 3, give any 3 examples of cases dealt under criminal law. Just the names of the cases, no detail. Question number 4, how will you define PPC? I need definition of Pakistan Penal Code. So this was your assignment, जो कि आपने अपने रजिस्टर्स पे या वर्ड पे लिखकर as you wish Google Classroom पे सबमिट करना है for your attendance, and the deadline is today is 16th of April, 11:59 p.m. would be your deadline for this assignment. 16th April, 11:59 p.m. This is the Parliament House. क्या है ये? Legislative body of the representative government, जहाँ पे हमारे सारे statute laws बनते हैं. Amendments भी उनमें हो सकती हैं. यहाँ पे हो सकता है कि existing law है लेकिन it needs an amendment, वो भी यहाँ पे होती है, majority से पास होती है. कमिंग टूवर्ड्स लॉज रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशंस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC. अगेन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है? वो प्रोसीजर जिसके तहत IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेक द स्टेप्स टू इन्वेस्टिगेट एनी अननेचुरल डेथ. कब तक? टिल ही रीचेज द फाइनल कंक्लूजन, तब उसका ये केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी. अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में जो सेक्शंस हमारे काम के हैं विच आर रिलेटेड टू अ मेडिकल ऑफिसर, दे आर 2 जो आपने याद रखने हैं. दीज आर सेक्शन 174 CRPC एंड सेक्शन 176 CRPC. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सेक्शन 174 CRPC मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अननेचुरल डेथ, जबकि 176 CRPC जो सेक्शन है इसके 2 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. अब सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा केस आया है व्हेन पुलिस इज़ इन्वॉल्व्ड एज अ पार्टी. फॉर एग्जांपल पुलिस टॉर्चर केस, पुलिस एनकाउंटर केस, डेथ हो गई है इन पुलिस कस्टडी, किसी प्रिजनर की डेथ हो गई, या फायरिंग पुलिस कर रही थी उसके दौरान कोई सिटीजन जो है उसकी डेथ हो गई. अब इन सारे केसेस में पुलिस इज़ इन्वॉल्व्ड एज अ पार्टी, तो भला पुलिस कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? IO तो नहीं करेगा वरना तो बायस हो जाएगा इसकी इन्वेस्टिगेशन. तो अब क्या किया जाए? इस सूरत में ये सेक्शन 174 नहीं बल्कि सेक्शन 176 CRPC के तहत ये इंक्वायरी होगी, एक जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ. सो नाउ दिस इंक्वायरी इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय द IO बट इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब ये किस सेक्शन के तहत ये कर रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी? सेक्शन 176 CRPC के तहत. और क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है बिकॉज इन दिस केस पुलिस इज़ इन्वॉल्व एज अ पार्टी. सो पुलिस अब इस केस की इंक्वायरी नहीं करेगी, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा. सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ये इंक्वायरी करता है ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ मिनिस्टर. सारे वो केसेस जिनमें पुलिस इज़ इन्वॉल्व एज अ पार्टी, चाहे वो विक्टिम पार्टी है चाहे वो कंप्लेनेंट पार्टी है, दोनों सूरतों में जुडिशियल इंक्वायरी होगी इसकी. उसके बाद आता है सेक्शन 176 CRPC का क्लॉज 2.
इस क्लॉज के तहत एक्सह्यूमेशन की जाती है। अब एक्सह्यूमेशन क्या होती है? एक्सह्यूमेशन का मीन है कि एक डेड बॉडी जो कि बरी कर दी गई है उसको फिर से उसकी कब्र कुशाई करना, उसको कब्र से निकालना, एंड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डेथ। अब इसका एक थोड़ा सा प्रोसीजर इस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स या रिलेटिव्स जो उस शख्स के थे जिसकी मौत हो चुकी है और जिसको दफना भी दिया गया है, दे गिव एप्लीकेशन टू इलाका मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फॉर एक्सह्यूमेशन। इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी कि एक शख्स की डेथ हो गई जिसको घर वालों ने समझा कि नेचुरल डेथ है, इसको दफना दिया जाके, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको पता लगा कि इसके तो पॉइज़न दिया गया था, किसी क्लोज रिलेटिव ने इसको पॉइज़न दिया गया। बिकॉज इट वाज अ नेचुरल डेथ तो इसकी इंक्वायरी नहीं हुई और इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन अब उनको ये बात पता लगी है तो अब उन्होंने एप्लीकेशन देनी है। उस शख्स के पेरेंट्स या कोई भी क्लोज रिलेटिव्स दे सकते हैं। किसको देंगे एप्लीकेशन? इलाका मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को कि ये मसला दरपेश है जिसके तहत आप एक्सह्यूमेशन की प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन ऑर्डर एक्सह्यूमेशन। और किस क्लॉज के तहत ये एक्सह्यूमेशन अब की जाएगी? दैट इज सेक्शन 176 CRPC। यानी आपको किस लॉ ने हक दिया है कि आप एक्सह्यूम करें, एक डेड बॉडी को फिर से निकालें, फिर से उसकी एग्जामिनेशन करें? तो आप बताएंगे जी सेक्शन 176 CRPC के तहत हम ये काम कर रहे हैं, एक्सह्यूमेशन कर रहे हैं। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर you should know कि what is the chain of events जिसके तहत कोई भी केस कोर्ट में जाता है और उसकी इंक्वायरी की जाती है। आपके जहन में एक इसका थोड़ा सा खाका होना चाहिए कि हाउ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी अननेचुरल डेथ। सपोज करें कहीं भी एक अननेचुरल डेथ होती है आपकी नेबरहुड में, आपकी कॉलोनी में। अननेचुरल डेथ, अ डेथ दैट इज़ नॉट नेचुरल, या इसको सडन डेथ कह लो या इसको आप कह लें डेथ अंडर सस्पिशियस कंडीशंस। ठीक है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल एक मर्डर हो गया, ठीक है, कोई बंदा आया, उसने फायरिंग करके उसको मार डाला, उस घर में जो भी बंदा रहता था और वो खुद भाग गया। अब ये हो गई एक अननेचुरल डेथ। सबसे पहले किसको रिपोर्ट की जाएगी? पुलिस को। घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। SHO को इन्फॉर्म किया कि जी ऐसे मसला हो गया। अब SHO क्या करेगा? SHO अभी स्टिल ही इज़ इन द पुलिस स्टेशन, ही इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म इलाका मजिस्ट्रेट। वो फ़ोन करेगा इलाका मजिस्ट्रेट को कि सर फ़लानी कॉलोनी में इस जगह पर इस हाउस नंबर पे एक अननेचुरल डेथ हो गई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने। ही हैज़ टू इन्फॉर्म द इलाका मजिस्ट्रेट। अच्छा, ही अल्टीमेटली रीचेस द क्राइम सीन। क्राइम सीन में जाकर वो डेड बॉडी को अपनी तहवील में ले लेगा। रिमेंबर कि जब अननेचुरल डेथ कोई भी होती है या डेथ अंडर सस्पिशियस कंडीशंस, तो बॉडी बिकम्स अ स्टेट प्रॉपर्टी। यानी वो किसी का बाप है, भाई है, किसी का हस्बैंड है, रिलेशन तो कायम रहेगा, लेकिन बॉडी स्टेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब स्टेट की जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन भी करना और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराना। अब ये उसकी तहवील में आ गई, किसकी? स्टेट की तहवील में। SHO ने डेड बॉडी को अपनी तहवील में लिया, उसने एविडेंस जो भी क्राइम सीन से कलेक्ट कर सकता था वो कलेक्ट किए। बॉडी को वो लेकर गया ऑटोप्सी के लिए CMO के पास, उसको वहाँ पे छोड़ा पोस्टमार्टम हाउस में। उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की इस केस की। अब किस सेक्शन के तहत? रिमेंबर सेक्शन 174 CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की SHO ने इस केस की, इस अननेचुरल डेथ की। जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो करता है उसको कहते हैं चालान। उसने चालान कंप्लीट किया, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, हैंड ओवर दिस टू द कोर्ट। अब कोर्ट का क्या काम है? ये भी प्रीलिमिनरी थी इन्वेस्टिगेशन, रिमेंबर। अब कोर्ट का ये काम है कि कोर्ट विल कॉल ऑल द विटनेसेस। उसमें वो डॉक्टर साहब भी आएंगे जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, और जो विटनेसेस थे, कुछ आई विटनेसेस थे, सबको बुला लिया उन्होंने। और इस तरह ट्रायल स्टार्ट हुआ इस केस का। ठीक है, ट्रायल चलता रहा। अल्टीमेटली उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया जज साहब ने, और पनिशमेंट हो गई क्रिमिनल को अंडर, अब रिमेंबर किस तहत, किस आर्टिकल के तहत? PPC के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उन्होंने उसको पनिशमेंट दे दी। यानी इन्वेस्टिगेशन उसने की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 174 CRPC के अकॉर्डिंग, और फिर जो उसको पनिशमेंट हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू PPC। So in this way
द ट्रायल गोज़ ऑन एंड द केस फाइनल जजमेंट जो है दैट इज़ गिवन बाय द जज, और उसको सज़ा हो गई मुजरिम को अंडर PPC। आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान पीनल कोड को उर्दू में मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाता है। इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स CRPC को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है ज़ाब्ता-ए फौजदारी। Now we are discussing the laws related to medical examinations. The second law is Qisas and Diyat Act. Qisas and Diyat Act, we have previously studied that what is the difference between act and ordinance. अब इस एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनमें से सेक्शन 332 से 338 जो सेक्शंस हैं दे पर्टेन टू वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ट। इनका ताल्लुक हर्ट से है, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। और सेक्शन 300 से 332 दे आर पर्टेनिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ कत्ल। इसमें कत्ल की 4 टाइप्स आ जाती हैं दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। कत्ले अमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बेसबब एंड कत्ले शिब्ब अमद। तो ये सेक्शंस के थोड़े से नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं कि 332 से 338 तक हर्ट के सेक्शंस हैं और 300 से 332 तक कत्ल के सेक्शंस हैं। That ends the lecture here. I hope you have understood all that we have discussed. Thank you.